بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جہاں تک ممکن ہو مل کر لڑیں گے، ممبئی میٹنگ میں انڈیا اتحاد کا اعلان، کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی۔ کاسٹ سینسس پر اختلافات، سیاسی قرارداد منظور نہیں کی جا سکی، کپل سبل کی موجودگی سے ڈرامہ۔ آمرانہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، انڈیا بلاک کے لیڈرز انتقامی سیاست کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں، کھرگے کا خطاب۔ ایک ملک ایک الیکشن کا جائزہ لینے کے لیے رام ناتھ کووند کی قیادت میں کمیٹی بنائی گئی، لا کمیشن نے کہا ممکن ہے۔ رشیا میں رشیا کے اندر سے حملہ، کارگو جہازوں کو نقصان، زیلنسکی نے کہا ناجائز قبضے ختم ہونے تک امن نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی کو گولی مار دی، اقصی میں 45,000 مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ داعش دوبارہ ابھر سکتی ہے، امریکی فوج نے دی وارننگ، کہا ایس ڈی ایف اور اتحادی لڑائی روکیں۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ نے سابق وزیر اعظم تھکسن شناواترا کی سزا گھٹا کر 1 سال کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا 2024 کے لوک سبھا الیکشنز جہاں تک ممکن ہو سکے مل کر لڑے گا۔ ممبئی میں میٹنگ کے آخری دن یہ بات کہی گئی۔ انڈیا اتحاد کی قرارداد کے جو الفاظ ہیں اس سے کچھ شبہات اور کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر اس گروپ کی نوعیت کے بارے میں کہ اپوزیشن کس حد تک متحد ہے اور کیا وزیر اعظم نریندر مودی کو تیسری میعاد حاصل کرنے سے یہ اتحاد روک سکتا ہے۔ اس بارے میں کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ان پارٹیوں نے جڑے گا بھارت جیتے گا انڈیا کے تھیم کے ساتھ اسٹریٹجی بنانے کا اعلان کیا۔ انڈیا اتحاد کی تیسری میٹنگ میں منظور کی گئی قرارداد میں سیٹوں کی تقسیم کا بھی حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ فوری اس سلسلے میں کام شروع ہوگا اور تعاون کے جذبے اور لو اور دو کے جذبے کے ساتھ ختم ہوگا۔ انڈیا اتحاد کی میٹنگ کے دوران جمعے کو کچھ ڈرامہ بھی ہوا، جہاں اچانک سابق کانگریس لیڈر کپل سبل پہنچ گئے۔ اختلاف کا ایک موضوع ذات پات پر مبنی مردم شماری یا کاسٹ سینسس بھی ہے۔ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے سیاسی قرارداد کی مخالفت کی کیونکہ اس میں ذات پات پر مبنی سینسس کی بات کہی گئی۔ بہار کی حکمراں جے ڈی یو اور آر جے ڈی کے علاوہ سماجوادی پارٹی نے قرارداد میں ذات پات کے سروے کو شامل کرنے کی تائید کی، جس کی وجہ سے یہ قرارداد منظور نہیں کی جا سکی۔ انڈیا اتحاد کا لوگو جاری کرنے کی بھی بات کہی جا رہی تھی، لیکن لوگو بھی جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی 2024 کے الیکشن سے پہلے ملے جلے شیڈیول کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یا کلیئرٹی کے ساتھ کچھ کہا گیا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اتحاد میں اختلافات دور کرنے اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے الگ الگ پارٹیوں پر مشتمل 14 رکنی کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی۔ یہ کمیٹی کامن منیمم پروگرام پر کام کرے گی اور سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں اختلافات دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ انڈیا اتحاد کی تیسری میٹنگ تھی، پہلی میٹنگ پٹنہ میں اور دوسری میٹنگ بنگلور میں ہوئی تھی۔ سورسز نے بتایا کہ سیٹوں کی تقسیم کو 30 ستمبر تک طے کر لیا جائے گا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھرگے نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ایکس پر ایک ملک ایک الیکشن کے خیال کے بارے میں کہا کہ چاہے حکومت کتنی بھی توجہ ہٹانے کی کوشش کر لے، لیکن لوگوں کو اب دھوکہ نہیں دیا جا سکے گا اور اس آمرانہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اپوزیشن کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کھرگے نے کہا کہ اپوزیشن حکومت کے اتحاد کی طاقت سے حکومت پریشان ہے اور انڈیا بلاک کو انتقامی سیاست کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ اب ان کے خلاف ایجنسیوں کا مزید غلط استعمال ہوگا۔ 2 روپے کم کرتے ہیں۔ اب پیٹرول کی ایل پی جی کی جو دام تھی وہ مور اور لیس ڈبل ہو گئی، لیکن انہوں نے اس میں سے صرف
200 रुपए कम किया, यानी 700 बाकी रहा। यानी पहला जो 55 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था उसको उन्होंने अभी भी 70 रुपए में ही 70-75 में रखा, यानी कोई कम नहीं हुआ। पहले जो था उससे ज्यादा बढ़ाए थे, उसको थोड़ा कम कर, लेकिन इससे लाखों रुपए उन्होंने कमाया। ये तो गरीबों से चोरी कर दिए। इस मीटिंग में खरगे के अलावा साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, पार्टी लीडर राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के सदर उद्धव ठाकरे, चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन और कई दूसरे लीडर्स ने हिस्सा लिया। अपोजिशन इत्तेहाद के लीडर्स ने करारदाद मंजूर करते हुए चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की तारीफ की और कहा कि इसके पीछे 6 दहाकों की मेहनत है। सोर्सेस ने बताया कि कपिल सिब्बल को इस मीटिंग के लिए दावत नहीं दी गई थी, लेकिन उनकी अचानक मौजूदगी से उनके बाद साथी यानी कांग्रेस लीडर्स नाराज हो गए। कपिल सिब्बल ने पिछले साल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। सीनियर कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने सिब्बल की मौजूदगी पर एतराज किया। उन्होंने मीटिंग के मेजबान और साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और वो फोटो में शामिल होना चाहते थे। बाद दूसरे लीडर्स ने मामले को रफा दफा करने के लिए पहल की और वेणुगोपाल को इस बात के लिए मनाया कि वो कपिल सिब्बल की मौजूदगी को बर्दाश्त करें ताकि तमाम अपोजिशन लीडर्स के दरमियान इत्तेहाद का पैगाम दिया जा सके। अहम बात यह है कि कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सिब्बल की मौजूदगी पर कोई एतराज नहीं है। इसके बाद कपिल सिब्बल को भी ग्रुप फोटो में शामिल किया गया। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में 13 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, लेकिन अहम बात यह है कि इसमें गांधी खानदान का कोई रुकन शामिल नहीं है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया इत्तेहाद की अगली मीटिंग दिल्ली में हो सकती है। मोदी हुकूमत ने एक मुल्क एक इलेक्शन के इम्कान का जायजा लेने के लिए साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़यादत में एक कमेटी बनाई है। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस पर अमल करने से पहले मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत होगी। वजीर ने कहा कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के लिए 1967 तक एक साथ इलेक्शंस होते थे। इस दौरान बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद से उनके मकान पर मुलाकात की। लॉ कमीशन के एक मुसवदे में कहा गया है कि एक साथ इलेक्शंस मुमकिन हैं और इस मसले पर एक फार्मूला बनाना चाहिए। इस मसले पर 2018 में लॉ कमीशन ने तफसीली बहस के बाद ये रिपोर्ट तैयार की थी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में एक फ़लस्तीनी को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस वाक़े में कम से कम 3 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीन की वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि 36 साल अब्दुर्रहीम फ़ैयाज़ के सर में गोली लगी। ये वाक़या जुमे की सुबह उस वक्त पेश आया जब इसराइली सिपाहियों ने अल-उक़ाबा गाँव में हमला किया। तकरीबन 1 घंटे बाद इस फ़लस्तीनी को मुर्दा करार दिया गया। इसराइली सिपाहियों ने आंसू गैस के शेल्स का इस्तेमाल किया और फायरिंग की। उन्होंने अब्दुर्रज़्ज़ाक़ नामी एक शख्स के घर को घेर लिया। इसके बाद रॉकेट ग्रेनेड से उसको भारी नुकसान पहुंचाया गया। बाद में अब्दुर्रज़्ज़ाक़ को उनके बेटे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 45,000 फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा में जुमे की नमाज अदा की। सुबह से ही नमाज जमा होनी शुरू हुए। इसराइली अहदेदारों ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए। मस्जिद में दाखिल होने के रास्तों पर भारी सिक्योरिटी देखी गई। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने लीबिया की सदारती कौंसिल के चीफ मोहम्मद अल मनफी से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने फ़लस्तीन कॉज और दूसरे मामलात पर बातचीत की। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। हाल ही में खबरें आई थीं कि लीबिया की वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल के वज़ीर ख़ारजा से रोम में मुलाकात की, जिसके बाद लीबिया में एक बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ। बाद में उस वज़ीर ख़ारजा को सस्पेंड कर दिया गया और वो मुल्क से फ़रार हो गए। इस दौरान वज़ीर आज़म अहमद बीबा पर भी बहुत दबाव है। रशिया के अंदर से हमला हुआ है, जिससे हलचल मच गई है। इस हमले में सोकोव शहर को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने बताया कि इस हमले में 2 कार्गो जहाज तबाह हो गए और 2 को नुकसान पहुंचा। रशिया ने कहा कि 4 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन में अहदेदारों ने यह नहीं बताया कि यह हमला किसने किया है। रशिया में तकरीबन हर रोज़ यूक्रेन के ड्रोन हमले हो रहे हैं। मॉस्को को भी निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनियंस ने बाज़ हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है।
यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक कीव रशिया के कब्जा किए हुए इलाकों को वापस नहीं ले लेता अमन कायम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि क्राइमिया से भी रशिया का कब्जा खत्म होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियारों को तैनात किया है। बताया गया कि यह हथियार 700 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकते हैं और इस फासले को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मगरबी मुल्क खास तौर पर अमरीका यूक्रेन की भरपूर फौजी मदद कर रहे हैं। आर्मीनिया ने कहा है कि अज़रबैजान की शेलिंग से उसके 2 सिपाही हलाक हो गए। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान नागोर्नो काराबाख इलाके के लिए ज़बरदस्त तनाव पाया जाता है। हालिया महीनों में तनाव में इजाफा हुआ है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर समझौते तोड़ने और फायरिंग करने का इल्ज़ाम लगाया है। इससे पहले आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान बाकायदा जंग भी हुई है। इराक में एक अमरीकी शहरी को हलाक करने के लिए एक ईरानी और 4 इराकियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उन्होंने कत्ल का इकरार कर लिया है और कहा है कि पहले उन्होंने पैसे के लिए अमरीकी शहरी का अगवा किया था और वो उसे मारना नहीं चाहते थे। इराक की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अमरीका ने इस फैसले को वेलकम किया है। थाईलैंड के बादशाह ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म थक्सिन शिनावात्रा की सज़ा घटाते हुए 1 साल कर दी है। थक्सिन शिनावात्रा पिछले हफ्ते ड्रामाई तौर पर मुल्क वापस हुए थे। वो जेल से बचने के लिए 15 साल जिलावतन रहे। शाही महल ने इस खबर की तस्दीक की कि उन्हें माफ़ कर दिया गया है और उनकी सज़ा कम करके 1 साल कर दी गई है। शाही महल के फरमान में कहा गया है कि थक्सिन शिनावात्रा एक अच्छे वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया और वो शाही के वफ़ादार रहे। उन्होंने प्रोसेस का एहतराम किया है और अपने जुर्म को माना है, अफसोस का इजहार किया है, अदालती फ़ैसलों को कबूल किया है और अब वो बूढ़े हो चुके हैं, वो बीमार हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। इसीलिए बादशाह ने उन्हें माफ़ी दी है। वो अपनी महारत और तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं। थक्सिन शिनावात्रा 2 बार वज़ीर आज़म चुने गए थे। 2006 में उन्हें फ़ौजी बगावत से हटा दिया गया था। थाईलैंड वापस आने के बाद उन्होंने बादशाह से दरख्वास्त की थी कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए या नरम की जाए। अमरीकी फ़ौज ने सीरिया में आइसिस या दाइश के दोबारा उभरने की वार्निंग दी है और ईस्ट सीरिया में अलग अलग ग्रुपों के दरमियान लड़ाई रोकने पर जोर दिया है। पीर को ऐसी लड़ाई में 40 लोग मारे गए थे और दर्जनों जख्मी हुए थे। ये लड़ाई दीर अल ज़ोर में हुई। ये कई बरसों में सबसे बदतरीन लड़ाई थी। सीरिया में आइसिस से लड़ाई के नाम पर सैकड़ों अमरीकी सिपाही तैनात हैं। ताज़ा लड़ाई कुर्दों की फ़ौज SDF और उसकी साबिक़ इत्तेहादी दीर अल ज़ोर मिलिट्री काउंसिल के दरमियान हुई। एक दिन पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा था कि अमरीकी फ़ौजों को सीरिया से चले जाना चाहिए। उन्होंने सीरिया के वज़ीर ख़ारजा फैसल मक़दाद से दमिश्क में मुलाकात करते हुए ये बात कही थी। SDF कुर्दों की फ़ौज है जिसे अमरीका की ताईद और सरपरस्ती हासिल है। डोमेस्टिक LPG के बाद अब कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की कीमत में भी कमी कर दी गई है। ऑयल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 158 रुपये की कमी की है। इस फैसले पर जुमे से अमल शुरू हो गया है। अब दिल्ली में 19 किलोग्राम का कमर्शियल LPG सिलेंडर 1522 रुपये में मिलेगा। हाल ही में डोमेस्टिक LPG पर 200 रुपये की कमी की गई थी। समझा जा रहा है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने यह फैसला किया। इसके अलावा कांग्रेस ने वादा किया है कि वो 500 रुपये में LPG सिलेंडर देगी, जिसकी वजह से मोदी हुकूमत पर दबाव है और ऐसा मालूम होता है कि इसी प्रेशर में ये फैसला किया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। जहां तक मुमकिन हो मिलकर लड़ेंगे। मुंबई मीटिंग में इंडिया इत्तेहाद का ऐलान, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। कास्ट सेंसस पर इख्तिलाफात, सियासी करारदाद मंजूर नहीं की जा सकी। कपिल सिब्बल की मौजूदगी से ड्रामा। आमिराना हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स इंतकामी सियासत का सामना करने के लिए तैयार रहें, खरगे का खिताब। एक मुल्क एक इलेक्शन का जायजा लेने के लिए रामनाथ कोविंद की क़यादत में कमेटी बनाई गई। लॉ कमीशन ने कहा मुमकिन है। रशिया के अंदर से हमला, कार्गो जहाज़ों को नुकसान। ज़ेलेंस्की ने कहा नाजायज कब्जे खत्म होने तक अमन नहीं हो सकता।
اسرائیلی فوج نے فلسطینی کو گولی مار دی، اقصی میں 45,000 مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ داعش دوبارہ ابھر سکتی ہے، امریکی فوج نے دی وارننگ، کہا ایس ڈی ایف اور اتحادی لڑائی روکیں۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ نے سابق وزیر اعظم تھکسن شناواترا کی سزا گھٹا کر 1 سال کر دی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔